Most of the minerals are absorbed from the soil, and there are 105 elements discovered so far, and from these 105 elements 60 elements are found in plants. कितने मिले हैं? 60 elements. Some plants are absorbing the gold element, and some even absorbing the selenium. Even wherever there are radioactive sites, strontium is also absorbed by the plant. Then question arises, what is the criteria of essentiality of plants? What criteria is used in determining the essentiality of plants? In our last lecture, we had studied about the hydroponics, and hydroponics were also giving the idea of the criteria of essentiality. I mean to say, why the hydroponics were done by the scientists, why they were in use to know the exact essentiality of a particular element. So we see now what is a criteria of essentiality of element. So first of all, we should know how many elements are discovered. Total 105 elements are there, and from these 105 elements 60 elements are found in plants. कितने मिले हैं? 60 elements they are found in plants. Discover कितने हुए हैं? Discovered so far up till now, according to the NCERT, 105 elements. Might be possible that in chemistry you must be hearing about the 120 elements. I don't know exact what is the accurate position of element these days, but as according to your NCERT, there are mentioned 105 elements, and 60 elements are we can say absorbed, are found in plants. And plants, they are also ability to absorb the gold. गोल्ड भी पाया गया है किसमें? प्लांट्स के अंदर. ठीक है. मोरओवर देयर प्लांट्स दे आर आल्सो हैविंग सेलेनियम. सेलेनियम इज आल्सो फाउंड. क्लियर. एंड if we talk about the radioactive sites, at radioactive sites wherever nuclear reactor आर प्रेजेंट, जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेजेंट होते हैं ना, एंड वहाँ के आसपास की सॉइल में भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एंड वेजिटेशन ऑफ दैट साइड इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एंड वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्शियम. तो स्ट्रॉन्शियम इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स. तो स्ट्रॉन्शियम is also found in plants. So on that basis, scientists they discovered so far what is the criteria of essentiality of element. क्या ये gold, selenium, or if we talk about strontium, are they really necessary for plants? Then why these plants they are absorbing? तो उसका आंसर एग्जैक्ट दिया गया. What was the criteria? कि क्या क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट जरूरी है प्लांट के लिए और एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है जरूरी प्लांट के लिए. तो देयर वर टू साइंटिस्ट, दे वर्कड ऑन इट एंड दे फाउंड सम क्राइटेरिया. अर्नर एंड स्टाउट. अर्नर एंड स्टाउट इन 1937 इन्होंने वर्क किया एंड दे डिस्कवर्ड द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स. उन्होंने क्या किया? व्हाट डू दे सेड अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी? एंड इफ वी वांट टू know about the criteria कि what is the reason why an element is necessary for the plant, क्यों necessary है, तो there must be some specific reason. अब वो reason कौन से हैं? that we see. First is it must be absolutely necessary for growth and development. Growth and development of plant. It must be, or it must participate in growing of plant, in development of plant. If this element is absent, then life cycle of that plant cannot be completed. A particular element को direct किस में यूटिलाइज होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. तो वो अगर एलिमेंट एब्सेंट हो जाए तो लाइफ साइकिल इफेक्ट करती है और लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, और इवन देयर इज नो सीड सेट. सीड सेट फॉर्मेशन भी नहीं होती. सीड्स आर ऑल्सो नोट
form, जिसको हम कह सकते हैं no seed set, no life cycle if particular element is absent. तो this is a first criteria of essentiality of element. First criteria ये लिया गया. Second, the element must be specific and it should not be replaced by. Specific element होना चाहिए and it should not be replaced by. Should not be replaced by some another element. I mean to say, if a particular element has specific function in a plant, जैसे कि potassium is responsible for opening and closing of stomata and for meristematic activity, and whatever function is assigned to the potassium, or we can take some another example of sodium. Sodium का example ले लें. एक particular element को अगर हम consider करते हैं ना, then we see that element is doing its proper work in that plant, and if particular element, that element is absent, तो क्या होगा? The elements, the deficiency symptoms will be seen by the plants. तो उसकी absence में, उसकी deficiency से कुछ symptoms नजर आएंगे plant में, and उसको पूरा करने के लिए we replace this potassium with some another element, तो वो replacement is not possible. That is why we can say the specific element should not be replaced by another एलिमेंट. एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्पेसिफिक वर्क होगा प्लांट के लिए और उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी. एंड दिस वाज अ सेकंड क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. थर्ड वाज द एलिमेंट शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. एलिमेंट्स शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स. एलिमेंट्स जो है डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल फंक्शन वॉट एवर आर परफॉर्म बाय द प्लांट्स, तो उनको रेगुलेट करने के लिए द एलिमेंट्स शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड उसमें ही. वट एवर फंक्शंस, चाहे हम फोटोसिंथेसिस कर लें, चाहे रेस्पिरेशन, और वॉट एवर लाइफ प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जिबिटेड बाय द प्लांट्स, और इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द प्लांट्स, एंड एलिमेंट्स शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्विंग इन दैट. चाहे वो एंजाइम को कैटेलाइज करने के लिए हो, जो मेटाबॉलिज्म में एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, उनके लिए जरूरी हो, वट एवर बी द रीजन, बट इट शुड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स. तो दीज आर थ्री क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से एक पर्टिकुलर एलिमेंट इज नेसेसरी. ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट नेसेसरी है. एंड द हाइड्रोपोनिक्स ने भी, जो हम वट एवर experiment are done with the help of hydroponics, and they are also giving the accurate idea of the essentiality of element. हाइड्रोपोनिक की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया और उसके अलावा इंडिकेटर प्लांट्स को जिनमें हमने डेफिशिएंट किया था एलिमेंट्स को, और सिम्टम्स जब नजर आए तो उसके बेसिस पे वी कैन कंपेयर विद द कंट्रोल जो बिल्कुल बैलेंस्ड ग्रोथ दे रहा था प्लांट की, और दूसरे प्लांट्स जिसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे. ठीक है, एंड डायरेक्टली दे वर टेलिंग द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट. क्लियर? ऑन दिस बेसिस on the basis of quantity, scientists they have discovered so far essential elements जितने भी हैं उनको two categories में divide किया गया है on the basis of their quantity, or they are detected in what manner they are, what is their quantity in which they are detected in the plants. तो quantitative basis पर elements, essential elements are divided into two main categories. Broadly, two main broad categories कौन सी हैं? Essential में two categories are divided into two groups. Two groups में divide किया गया. और what are these two groups that we see? First of all, macronutrients. Macronutrients, these are found in excess of 10 millimole per kg of dry matter. These are found in plants in excess of. These elements are required, we can say, by the plants in large amount, and they are detected in the plants. They are detected. कितने मिले हैं? Detected in
plants in excess of 10 millimole per kg of dry matter. और सेकेंड एजम्पशन हम ले सकते हैं नियर अबाउट 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर. ठीक है, या इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं. दे आर फाउंड इन प्लांट्स 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर. ठीक है, तो दीज आर असेंशियल और दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट में जो डिटेक्ट हुए हैं, और उनकी क्या क्वांटिटी बताई गई है. इधर इट इज 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर और 1 to 10 मिलीग्राम पर ड्राई मैटर. ठीक है, तो इस बेसिस पे देयर आर 9 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, and they are all included under these are the 9 element essential, जो कि एक तरह से what we can say are included under the macronutrients. किसमें मिले गए हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाए गए हैं. और इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑफ कोर्स नाइट्रोजन इज ऑल्सो दे आर फॉर्मिंग द framework and they are found in biomolecules that we are discussing later on. तो एक तरह से ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से इनकी deficiency, from where they are taken? Mostly they are taken in the form of carbon dioxide and water. ठीक है, water is absorbed from the soil से ही मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड from the environment. I mean to say these two are taken for the process of photosynthesis. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ही सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाते हैं, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड नाइट्रोजन इज मिनरल एज वेल एज नॉन मिनरल. ये एनवायरनमेंट से भी मिलता है और नॉन मिनरल. एंड सॉइल में से भी एब्जॉर्ब हो सकता है. इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये इंक्लूड किया जाता है मिनरल और नॉन मिनरल में भी. क्लियर. एंड देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे आर नॉन मिनरल एंड डेफिनेटली दे आर टेकन फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अलॉन्ग विद द वाटर स्ट्रीम के साथ ही एब्जॉर्ब होती हैं, तो सॉइल में से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट I just tell you. Now we come to the next part, micro. Nutrients are found in less amount as compared to macro. They are detected in less amount. And what is their ratio? Their ratio is less than 1 millimole per kg of dry matter. Millimole per kg of dry matter. और सेकेंड एजम्पशन हम ले सकते हैं लेस देन 0.1 ग्राम, less than 0.1 ग्राम per 0.1 milligram per gram of dry matter that we have to keep in mind. ये हमने लर्न करना है. ठीक है, तो on this basis we can include 8 elements that are micronutrients. उसमें आते हैं आयरन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन. कितने हो गए? 3, 6 and 7. One is nickel, I think it is left. Nickel. All these are micronutrient. ये सब क्या है? Micronutrient है and they are detected in small amount in the plant. So this is regarding the categories of the nutrients on the basis of quantity. ठीक है, तो there are various mnemonics that you can make by yourself, but मैं तो ये कहती हूँ कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इस चैप्टर से रिलेटेड, उनका एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए. उस चार्ट के बेसिस पे डेली रूटीन पे आप इसको लर्न करें इंस्टेड ऑफ लर्निंग दी सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ न्यूमोनिक्स, जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में दिए गए हैं. तो इसमें आपको इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू मेक चार्ट. एक चार्ट वाइज आप उसको पढ़ोगे ना, और लास्ट मोमेंट पे व्हेन एवर द एग्जामिनेशन विल कम, इट विल गिव यू ए ग्रेट हेल्प, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाते हैं
और बहुत जल्दी लर्न भी होते हैं और एकदम से भूलते भी हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट पे इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वाई देयर इज ए नीड टू मेक ए चार्ट ऑफ दिस। एक चार्ट बनाइए, और आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक ए चार्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी अब बाद में हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो उनको हमने कैसे लर्न करना है, तो एक ब्रीफ चार्ट आई विल बी ऑल्सो मेकिंग ऑन दिस बोर्ड बनाऊंगी, ताकि आपको कुछ तो एलिमेंट्स को कंपैरिजन के रूप से ही जैसे जैसे कंपेयर करोगे ना, तो आपको एकदम से रिटेन रहेंगे कि किस पर्टिकुलर एनिमल के मिनरल के क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे देखते हैं, तो फंक्शनल एस्पेक्ट भी देखते हैं। व्हाट आर वेरियस on the basis of functional aspect, what are various groups of these element? So these are 17 elements, 9 plus 8. In beside these there are some beneficial भी हैं जो कि डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करते। बेनिफिशियल एलिमेंट दे आर रिक्वायर्ड बाय दी प्लांट्स, जो बेनिफिट देते हैं एक्स्ट्रा, एंड इवन देयर आर सम डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर आल्सो सीन। अगर ये एलिमेंट्स कम हो जाए ना, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी देखे गए हैं प्लांट्स में, बट रियली दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो कौन कौन से हैं? सोडियम, कोबाल्ट और सिलीनियम, सोडियम एंड निकल। I just confirm whether nickel is there, sodium, cobalt, silicon is there, I think. Just I confirm and then tell you. So nickel is coming in the micronutrient that we have already mentioned. Sodium, cobalt, selenium and silicon. These are 4 beneficial element. Moreover, there are some books जिसमें vanadium and aluminium को भी include किया गया है. But these are only 4 which are present in your NCERT. Then you have to keep a stress on only these 4 elements. ठीक है? तो sodium, cobalt, silicon and selenium all the are the beneficial elements. They are not directly involved in growth and development, but they will be benefiting the plants if they are present in the plants or given to the plants. Now on functional basis we see what are various groups of elements. So we will be moving according to the NCERT, because there is no need to give a stress on extra, because everything will be coming from the NCERT in this chapter. So we have to cram only NCERT. Stress हमने किस पे देना है? NCERT पे ही देना है. तो on this basis we can say functional basis पे we can divide into 4 main groups. Functional basis पर we can divide into 4 main groups. Functional basis पर groups of elements. First of all structural, they are participating the structural role. जैसे कि structural elements कौन से हैं जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लांट्स का और बायोमोलिक्यूल्स का हिस्सा है. दैट इज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रेमवर्क बनाते हैं, एंड mostly we are getting them from the environment as well as from the soil in the form of carbon dioxide, and water and nitrogen in the form of it will be fixed by means from the atmosphere as well as from the soil. Soil से भी बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं. तो it is a detailed account that we are going to study in detail. नाइट्रोजन के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्टिवेटर एंड इनिबिटर ऑफ सम एंजाइम्स. एक्टिवेटर एंड इनिबिटर. जितने भी प्लांट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल पाथवे होते हैं ना, जैसे मेटाबॉलिक पाथवे मेन इंपॉर्टेंट हमने पढ़नी है फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड चैप्टर उसके अलावा रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर. तो उसमें बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस और साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं. तो उसके लिए आई मीन टू से फोटोसिंथेसिस का ही हम एग्जांपल लें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स होती है बाय मींस ऑफ वेरियस साइकिल, जैसे केल्विन साइकिल है या हम कह सकते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल है. ये तो 2 एग्जांपल हैं, इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे. उसमें हम देखना चाहते हैं कि जिसमें बहुत मैग्नीशियम आयन इज इन्वॉल्व. ठीक है, इन्वॉल्व होता है. इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग दी RUBP. RUBP क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट. रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम. रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट. रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। अभी तो ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, लेकिन ये हम फोटोसिंथेसिस में जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑन योर टिप्स, आपके माइंड में इतना ज्यादा यूज हो जाएगा। ये एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है जो केल्विन साइकिल को ऑपरेट करता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। तो दैट इज वाई सेकेंड ग्रुप आता है एक्टिवेटर ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके अलावा मैग्नीशियम और भी फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्स पीईपी केस, इसका भी नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट carboxylase. It is also involved in maintaining the H and Slack cycle that we are going to discuss in our photosynthesis. दोनों ही कार्बन फिक्सेशन के पाथवे हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं वो तो डिटेल्ड अकाउंट हम बाद में देखेंगे ही, एंड डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस एंड इट विल बी ऑन योर टिप्स, आपके टिप्स पे हो जाएंगे ये एंजाइम। ठीक है, बहुत कॉमन एंजाइम है और इनको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा है, मैग्नीशियम। इसी तरह से जिंक है, एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन रिएक्शंस। ये भी हम फिर से चेक करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्मेंटेशन रिएक्शन और एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वाले टॉपिक में दिस विल कम अगेन। तो जिंक इज ऑल्सो एक्टिवेटर। मोरोवर मोलिब्डेनम इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजनेस एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजनेस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो इन ऑन दिस बेसिस, एक्टिवेशन के बेसिस पे भी हमने देख लिए कुछ एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। दीज आर ओनली फॉर दीज विच आर स्पेसिफिकली मेंशन, ये दो या तीन तो मेंशन एनसीईआरटी के इस चैप्टर में किए गए ना। लेस्ट ऑफ दी सम ऑफ दी अदर एलिमेंट दे आर एक्टिवेटिंग वेरियस अदर प्रोसेसेस, जैसे आयरन का भी रोल हम देखेंगे, मैग्नीज का भी देखेंगे। मैग्नीज इज इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, मैग्नीज और क्लोराइड, ये भी हम देखेंगे किसमें, इन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल देम इन डिटेल। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो एनर्जी गिविंग है। एनर्जी गिविंग में वी कैन टेक टू एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये भी फोटोसिंथेसिस में हमने देखना है, सेंट्रल में होता है मैग्नीशियम, उसके चारों तरफ 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल। ऑलवेज दे आर प्रेजेंट इन चार्ज पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब भी प्लांट्स उनको कैसे करते हैं, चार्ज आयन की फॉर्म में ही करते हैं, ठीक है, एंड दे आर इजी टू एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सेकेंड, फास्फोरस एटीपी में होता है। एटीपी इज अवर एनर्जी करेंसी, इज लिविंग करेंसी। तो एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये प्रेजेंट होता ही है, और फास्फोरस वैसे भी डीएनए का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो डीएनए इज अवर व्हाट वी कैन से इज जेनेटिक मटेरियल, बट it is not included in this energy giving compound, and only phosphorus ATP का हिस्सा है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है। तो दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इनटू द एनर्जी गिविंग ग्रुप। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पोटाशियम का जो रोल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ये इसका भी हम बहुत सारा रोल जो है, पोटाशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सोडियम पोटाशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। तो ये एक हम ऑस्मोटिक बैलेंस के बेसिस पे भी हमने पोटाशियम को ग्रुप में रखा। क्लियर? तो ऑन दिस बेसिस, फंक्शनल बेसिस पे भी हमने वी हैव टेकन 4 ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल टू नो अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। Clear? So we come to the next topic now.